Understand the various language used in time and work chapter. Let's start solving certain number of questions. Make sure that you have watched the previous lecture because my lecture will be linked from whatever I taught in the last lecture. Let's start. Ajay can do a piece of work in 6 days, while Bhavesh can do the same piece of work completely in 12 days. In how many days Ajay and Bhavesh together will finish the same work? Okay, so before starting with the language, the beginner's mistake or your thought process should never be like this. Let's say that A is doing it in 6 days, B is doing it in 12 days. So A plus B, that is 18. That is A and B together are doing it in 18 days. That is completely wrong. I will highlight again that days cannot be added. Days should never do this addition of 6 plus 12, because think logically, right? If Ajay was doing the work in 6 days while Bhavesh was doing in 12, now if they are working together, they are getting assistance from each other. तो अब तो वो एक दिन में ज़्यादा काम कर लेते हैं, एंड ज़्यादा काम कर लेते हैं तो वो कम दिन में काम खत्म कर लेंगे, राइट और रॉन्ग? तो कम होना चाहिए डेज, तो आपने डेज तो 18 कर दिया, मतलब दोनों साथ में करने के बाद भी ज़्यादा दिन लगा रहे हैं, तो दैट इज लॉजिकली ऑल्सो नॉट करेक्ट एंड यू शुड नेवर ऐड द डेज. टू बिगिन विथ, I am going to highlight two certain methods to deal with such questions. First method will be the general textbookish way that you do, and the second will be the shorter approach that I want you to start from this very first question, so that you practice these shorter approaches with me. So till the end of the 7th or 8th lecture, you will be done with all the time and work concepts with the shorter way. Okay, to begin with, the first method is fraction method, that is expressing the total work as a fraction. Okay, expressing the total work as a fraction. Let's say we have already learned from the previous lecture that whenever the definition of entire work is given, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि A completes the work in 6 days, तो मैं A का 1 day work निकाल सकता हूँ. A is 1 day work. वेरी सिंपल. यस सर, आपने बताया था जस्ट रेसिप्रोकल कर दो. अगर 6 days दिया हुआ है तो A का 1 day work हो गया 6. तो what this 1/6 means, 1/6 of the work is done in a single day. Similarly मैं B का 1 day का वर्क निकाल सकता हूँ, 1 day वर्क. ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से पूरा डिटेल में समझाया था, राइट? तो हाँ, अगर नंबर ऑफ डेज 12 है तो एक दिन का काम हो जाएगा रेसिप्रोकल, ये आपने समझाया था. what this 1/12 is, 1/12 of the work is done in 1 day. Okay, done in 1 day by A and B. Now pretty straightforward thought process. अब A और B साथ में काम करेंगे तो दोनों का वर्क ऐड कर दो. This is what I mean that work can be added. So A and B together, तो इनका हमको 1 day वर्क मिल जाएगा, 1 day वर्क मिल जाएगा if I just add their together. Okay, so this is 1/6 plus 1/12, and if I take the LCM, that will be 12 and this will be 3, and answer will be 1/4. Now what is this 1/4? 1/4 of the work is done by A and B together on a single day. 1/4 of the work. Now you should be smart and fast enough. Since 1/4 of the work is done in a single day, in how many days the complete work will be done? That is 4 days. Reciprocal of the work. That is 4 days. Straightforward. How you can remember this in a general way? Let's say A finishes the work in X days. A completes the work in X days. Whenever the entire work की definition दिया हुआ है, B completes the work in Y days. So if you just replace this, what is happening here? I can just write it generally as 1 plus X upon 1 plus Y. Okay, general formula derive करने की कोशिश कर रहा हूँ, X plus Y. So हमने रेसिप्रोकल किया था ना, 1/4 आया था तो उसका रेसिप्रोकल किया था, तो नंबर ऑफ डेज A and B together finishes it, right? Number of days A and B together finishes will be reciprocal of this, that is XY upon X plus Y. This is a shorter approach, or like you can say it is a formula for 2 person. Only for two people this is valid, which I just proved, like I derived it from the question that I just solved in front of you. तो ये आप याद रख सकते हैं. कभी कभी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे बस इसको यूज करके भी आंसर आ जाएगा, बट देन अगेन जनरल अप्रोच तो हमारा समझना इंपॉर्टेंट था, और ये सिर्फ 2 पीपल के लिए वैलिड है, तो ये ज़्यादा काम नहीं आएगा, बट देन हाँ अगर याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है. दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द डेज इंडिविजुअल अपॉन सम ऑफ द इंडिविजुअल डेज. ओके, दैट विल गिव मी नंबर ऑफ डेज दे आर फिनिशिंग द वर्क. और आप चाहे तो डालकर देख सकते हैं, एक्स का वैल्यू 6 है, वाई का वैल्यू 12 है, तो एक्स इंटू वाई दैट इज 6 into 12 upon 6 plus 12, that is 18. So 6 into 12 upon 18 will give me 4. You can check that.
what process that I would recommend you and want you to have from this very first question is the second approach, and this is very fast approach, this is very shorter approach. आपको लगेगा समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट एक बार समझ आ गया तो आप सारे क्वेश्चंस MRT मेथड से सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं. तो सेकेंड मेथड इज बेसिकली expressing work as in units, मतलब that is MRT method. Here M refers to men. Men, for example, in this question is Ajay and Bhavesh. R refers to rate. Rate is work done per unit time, and T refers to time, that is days here, 6 days, 12 days. I will be थोड़ा सा बात करूंगा ओवर रेट. व्हाट इज रेट? बेसिकली जो मैंने बॉक्सेस का स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि लेट्स से कि अजय को 12 बॉक्सेस बनाने हैं, भावेश को 12 बॉक्सेस बनाने हैं, तो अजय 6 दिन में बना देता है, भावेश 12 दिन में बनाता है. तो अगर आप देखते हैं तो अजय एक दिन में 2 बॉक्सेस बना रहा है, तो बेसिकली इसका रेट हो जाएगा 2, और भावेश एक दिन में एक ही बॉक्स बना रहा है, तो इसका रेट हो जाएगा 1. इन लेमन टर्म्स आई कैन से दैट कि एक दिन का काम ये एक वर्कर या एक मैन या वुमेन जो भी होगा, एक मैन एक दिन में कितना काम कर रहा है. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द MRT अप्रोच. फर्स्ट, whenever a time and work question comes in front of you, you will be making this diagram immediately, not taking more than 2 minutes or 3. ठीक है, MRT W. Here M refers to men, R refers to rate, time is. अब मैं बता देता हूँ यहाँ पे men कौन होगा हमारा, अजय, ओके, भावेश, एंड सिंस दे आर वर्किंग टुगेदर, मुझे वर्किंग टुगेदर का पूछा है कि कितने डेज में वर्क फिनिश करते हैं. टाइम हमारा हमेशा टाइम ऐसा कुछ होगा, आवर्स, मिनट्स, डेज, राइट. तो यहाँ पे 6 डेज ऑफ अजय, भावेश का 12 डेज है. अब हाउ टू, इसके बाद कैसे प्रोसीड करना है, जब भी आपको एंटायर मतलब कंप्लीट वर्क का टाइम मिल जाता है, ए का कंप्लीट वर्क का टाइम है, बी का कंप्लीट वर्क का टाइम है, तो इसका एलसीएम ले लो. दिस मेथड इज आल्सो नोन एज एलसीएम अप्रोच. इसका एलसीएम ले लो, 6 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 12. What is the rate here? Rate here is work done per unit time. तो 12 units of work करना है and he is finishing the work in 6 days. So he is doing 2 units of work per day. So 12 by 6. अगर ये व्यक्ति 12 डेज तक काम कर रहा है तो ये एक दिन में 1 यूनिट ऑफ वर्क कर रहा है. दैट इज ही इज डूइंग 12 यूनिट्स ऑफ वर्क. ए एंड बी आर डूइंग 12 यूनिट्स ऑफ वर्क. अब इनको सेम वर्क दिया है, इनको 12 यूनिट ऑफ वर्क करना है और ये साथ में काम कर रहे हैं. तो अगेन इंपॉर्टेंट थिंग दैट रेट्स कैन ऑलवेज बी एडेड. यू कैन ऑलवेज ऐड सब्ट्रैक्ट रेट्स, राइट. तो इनका रेट ऐड कर दो, जो मैंने बॉक्सेस का एग्जांपल दिया था, 2 बॉक्सेस 1 बॉक्सेस, तो साथ में 3 बॉक्सेस, राइट. तो 2 + 1 3. अब क्या बचा है, टाइम निकालना. मेरे पास रेट आ गया और मुझे टाइम निकालना है. सर एक दिन में 3 बॉक्सेस बना रहे तो सिंपल है, 12 by 3 दैट इज 4 डेज में मेरा आंसर आ जाएगा. दिस अप्रोच इज रियली हेल्पफुल वंस यू स्टार्ट अडाप्टिंग टुवर्ड्स इट. तो अगर अभी आपको एकदम ऐसा लग रहा है कि बहुत हेस्टी है सर ने पता नहीं क्या डायग्राम बनाया, बट मेरे साथ अगर आप 4 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे इस मेथड से, तो आपका पूरा MRT डायग्राम से सारे क्वेश्चंस, every question of time and work you will be able to tackle. Let's not waste time and let's move to the second question. The second question starts like A and B together can do a piece of work in 12 days while A alone can do the same piece of work in 18 days. What do you observe this time? That we are given together, मतलब साथ में उनका काम दे दिया और अब अकेले का है और दूसरे वाले अकेले का पूछा है. That is in how many days we will alone finish the same work. तो फ्रैक्शन मेथड, व्हाट विल बी द फर्स्ट फ्रैक्शन मेथड मेरा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, फ्रैक्शन मेथड दैट आई विल फाइंड द 1 day work of A and B together. आई विल फाइंड द 1 day work of A and B together, दैट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेज. तो वो कितना हो जाएगा 12, 1/12. एंड देन आई विल फाइंड द 1 day वर्क ऑफ A alone. A alone का एक दिन का वर्क हो जाएगा 1/80. नाउ दिस शुड बी वेरी फंडामेंटली ट्रांसपेरेंट टू यू कि अगर मैं एक दिन के काम से ए और बी के साथ के काम से ए का काम हटा लूं तो मुझे एक दिन का बी का काम आ जाएगा. एंड दैट विल बी 1/12 माइनस 1/18. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी लीनियर. ओके, तो 1/18 और 1/12 का एलसीएम क्या हो जाएगा 36. सो दिस विल बी 3 - 2 दैट इज 1. सो 1/36 इज द 1 day वर्क ऑफ बी. अगेन रिपीटिंग, 1/36 इज द 1/36 of the work he is doing in 1 day. So he will be taking around 36 days. Just a reciprocal it. Very simple and very basic question. 36 days to finish the same work. I'll repeat it what I just did. First I found 1 day work of A and B together. Then I found 1 day work of A together. Very easy. Reciprocal the total number of days.
ठीक है, तो मैंने ये किया और उसके बाद मैंने बी के अकेले का एक दिन का काम निकालने के लिए दोनों के काम में से सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो मुझे एक दिन का काम बी का मिल गया एंड देन आई वाज एबल टू रीच टू द आंसर। वेरी इजी, ये भी बहुत इजी है। बट अगेन MRT मेथड क्यों बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे जाकर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो फ्रैक्शन मेथड से काफी लेंदी हो जाते हैं। एंड MRT डायग्राम, विद MRT डायग्राम यू आर एबल टू डील विद दीज क्वेश्चंस वेरी इजीली। तो आई विल बी जस्ट ड्रॉइंग दिस MRTW। Okay, who are men here? A and B together are finishing the work in 12 days. A alone is finishing the work in 80 and B का मुझसे पूछा है कि B का कितना होगा। ओके, हमेशा कहता हूँ कि हमेशा बोला है कि जैसे ही टाइम आ जाए, जैसे ही एंटायर वर्क का आ जाए, आपको क्या लेना है, एंटायर टाइम का ड्यूरेशन आ जाए तो मेरे को LCM लेना है। 18 और 12 का LCM हो जाएगा 36। यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 36 आए, ऐसे कर लो 36/12 कर लो, या ऐसे लीनियरली सोचो ना कि 12 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 36 आ जाए, हाँ 3, तो मेरा रेट हो गया 3। मैं यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 36 आ जाए 2, तो A और B का साथ में रेट हो गया 3, दैट इज 3 यूनिट्स पर डे दे आर वर्किंग एंड A अकेला 2 यूनिट्स पर वर्क करता है। तो B का कितना हो जाएगा 3 - 2 दैट इज 1। इफ B इज डूइंग 1 यूनिट पर डे, तो मैं यहाँ क्या नंबर डालूँ कि मेरा प्रोडक्ट आए 36। ओके, दिस विल बी 36 डे। और आपको ऐसे भी समझ आना चाहिए कि अगर एक दिन में वो 1 यूनिट ऑफ वर्क कर रहा है तो उसको 36 यूनिट ऑफ वर्क करने में 36 डेज लगेंगे। एक दिन में 2 यूनिट ऑफ वर्क कर रहा है तो 18 डेज में वो 36 यूनिट ऑफ वर्क फिनिश करेगा। बेसिकली ये जो 36 होता है, ये 36 यूनिट ऑफ वर्क हम अज्यूम करते हैं, वो भी कैसे, LCM लेकर, ताकि हमारी इजी वैल्यूज रेट किया जाए और हम आसानी से आंसर निकालें। दैट इज 36 डेज इज आवर आंसर। 36 डेज इज आवर आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन भी काफी आसानी से हो गया। लेट्स इंट्रोड्यूस थर्ड प्लेयर इन द सेम फील्ड। ओके, अब देखो धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज कर रहा है। अब क्या आया है, A and B together finishes the work in 15 days. When assisted by C, that is with the help of C, they are able to finish the same work in 6 days. In how many days C alone can do the same work? Okay, again अब से मैं क्वेश्चंस MRT डायग्राम से डायरेक्टली करूंगा, तो आपको भी अडाप्ट करना है। ठीक है, ये हो गया M, ये हो गया R, ये हो गया T। M क्या है हमारे, मैन कौन है यहाँ पे, अजय, A एंड B। ओके, अब क्या है, A और किसका दिया हुआ है, A और B और C का, और पूछा किसका है, C का। तो ये जल्दी से ऐसा बना लिया, ऐसा डाल दिया आपने। उसके बाद आपको डेज दिया होगा, A और B का साथ में कितने डेज का वर्क दिया हुआ है, A और B का साथ में कितने डेज का वर्क दिया हुआ है, दैट इज 15 डेज। ABC का साथ में कितना दिया हुआ है, 6। ओके, जैसे ही टाइम आया आपने क्या लिया, LCM, 15 और 6 का LCM 30। A और B का रेट कितना हो जाएगा, 2, किससे मल्टीप्लाई करोगे 30 है, दैट इज 2। ABC का साथ में कितना रेट हो जाएगा, दैट इज 5। C का रेट क्या हो जाएगा, अगर ABC के रेट से A और B का रेट सब्ट्रैक्ट कर लूंगा तो C का रेट आ जाएगा, दैट इज 3। तो मैं 3 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 30 आए, 10, तो मेरा आंसर आया 10 डेज। वेरी इजी। ओके, तो अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि MRT डायग्राम से हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। द नेक्स्ट लेक्चर विल बी अबाउट व्हेन पीपल लीविंग और ज्वाइनिंग, प्राइप्स एंड क्वेश्चन के, और हम सभी चीज इसी मेथड से करेंगे, दैट इज MRT, मैन, रेट, टाइम एंड वर्क। आई शुड अगेन लास्ट पार्ट, मैन यहाँ पे होता है जो मैन काम कर रहा है, रेट होता है उनका वर्क डन पर यूनिट टाइम, एंड टाइम इज द नंबर ऑफ डेज, और ये हम वर्क अज्यूम कर लेते हैं। तो 30 यूनिट ऑफ वर्क इज डन बाय C अलोन इन 10 डेज, और ये 3 यूनिट ऑफ वर्क है, ये 5 यूनिट ऑफ वर्क पर डे, 2 यूनिट ऑफ वर्क पर डे। ओके, सो if you've seen the complete lecture, thank you so much. Do like it if you like my pedagogy. Also do subscribe to our channel, because there will be many more lectures on time and work, and we'll be solving many questions in the class itself. Okay, thank you so much.